and vision than it currently is. In your speech in the parliament, which was yesterday, you have stated, if I'm not... दीन स्पीचेस के मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, राहुल गांधी जी भी नागा कल्चर के फ़ैन निकले। राहुल गांधी जी वाहिद इंसान है जो न सिर्फ हिंदुओं को बल्कि सिख, ईसाई, मुस्लिम जितने भी हैं इंडिया के रहने वाले, उन सब को ये कहता है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, न कि मोदी की तरह जो सिर्फ हिंदू को कहता है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो राहुल गांधी जी मिले नागालैंड वालों से और एग्जाम्पल किस चीज़ की दी है तो वो भी देखते हैं इस वीडियो में। वापस आके बात करेंगे, कहीं जाना मत। It's made of cotton and it has something else. Polyester? Polyester. So in India, Reliance ensures that there is a import duty on polyester, so that nobody other than Reliance can sell polyester in India. So Reliance is essentially strangling the textile market in India by saying, if you want to make clothes, the only polyester you can use is polyester that Reliance makes, right? And this has cost India, this simple one duty has cost India 1 crore jobs. The same thing Adani is doing in our airports. The same thing Adani is going to do with electric cars. So we have these large businesses, mainly Adani, Ambani, these 5-7 big businesses who are not interested in production. So if you want to have production in India, you got to carve a space out and you got to say, actually, we are not going to allow Reliance to destroy the textile industry. We are not going to allow Adani to destroy the travel industry, right? So that's really the reason why we're not getting jobs. Big opportunity is coming, right? Because we are changing the way we move. You see that car there? Uska bonnet kholo zara. When you have an accident, this is what kills you, right? And the reason it kills you is that this thing, when it gets hit by something, has massive energy going backwards. So the entire car is designed to hold this engine in place and to stop the engine from flying into you and killing you. Yeah. Why is this? They're teaching you all these fancy things. They're not teaching you the most basic thing. There is an explosion taking place inside this engine every time you start it. Oh. Right? So if you start it, start karo. This. Now this is sounding not very loud, but actually this is a 4-cylinder engine. There are 4 cylinders. There's explosions taking place in this. Bar. This needs to be 300 kilos to control the explosion. Okay? Now, how does this run? The fuel Tank. Yeah. So here, there is another thing in the back, which is also an explosive, right? Because if you don't separate that from the guys in the car, and you have an impact, then they're gonna either die with this or they're gonna die with that. So the entire car is designed to make sure that these two things don't kill the passengers. Now, what happens when you have an electric motor? This centralized power suddenly becomes decentralized, right? Now you have one motor here, one motor there, one motor there, and one motor there. When you have an accident, what happens? Nothing happens. Nothing happens. So what you've done is you've decentralized the engine. And because you've decentralized the engine, you've completely reshaped the car. So you don't need metals. The amount of metal that will be used will drop completely. The structure will completely change. If you've noticed an electric car, there's no protection in the middle. The battery itself becomes the protection. What is actually happening is decentralization of power, right? That's exactly what a robot is. A robot is this divided into thousands. One motor here, 5 motors here, 5 motors here. And what is going to be the structure around that is going to take place? It's going to be the battery, it's going to be the motor. And later when you have autonomous cars and autonomous drones and autonomous everything, what else do you need? You use your eyes to guide the car. Yeah. Now the car is going to develop eyes, which is autonomous driving. So what is happening is they're taking away control from you and giving control to this. So these are the technologies that now are going to become critical. That's what my speech was about. Yeah. So then the question is, okay, where does India fit into all this? That now we're going to move differently, right? So the politics is going to become that, right? So when you're imagining politics, you're saying, okay, so what would it look like if power was suddenly decentralized? What would policy look like? What would violence look like? What would war look like? Everything going to change. See, this is what I meant yesterday in my speech. Yeah. So what I meant yesterday in my speech that we have to start taking this understanding to universities and colleges. Yeah. What happens? What is the first thing that happens when a paradigm shift takes place? Politically, what happens? Everybody will disagree, I think. No, the first thing that happens is superpowers die, right? So the British power was built on steam. The moment we went to petrol, their entire architecture is built on steam and coal, and suddenly the new architecture is petrol, they die. Today, the United States, the West, and India's architecture is all built on petrol. We're in trouble. We have to quickly now start moving aggressively to that. राहुल गांधी जी, हम उनसे बातें करेंगे। राहुल जी, जिस तरह से गुजरात में आपने इश्यू नहीं बदलने दिए, हालांकि कुछ कांग्रेस के नेताओं ने जो बयानबाजी की मुश्किलें जरूर पड़ी, लेकिन पहली बार कांग्रेस ने इस तरह से इश्यू को पकड़ रखा कि जो वहाँ के शासक पक्ष वो भी बैकफुट पर आ गया। ये स्ट्रेटेजी आप किस तरह से देखते हैं इसको? हमारी कोशिश थी
3-4 महीने से कि हम जो गुजरात के अंदर जो आवाज़ है, जो फीलिंग है, उसको हम गहराई से समझें और उसको हम आगे लाएं। किसानों के बीच गए, मजदूरों के पास सूरत गए, फैक्ट्रीज़ में गए, सबसे हमने बात की। लाखों लोगों से तो मैं पर्सनली मिला हूँ, हाथ मिलाए। और जो उन्होंने हमें कहा वो हमने मेज़ पे रख दिया। कहा कि देखिए, ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, ये गुजरात कह रहा है। चाहे वो गब्बर सिंह टैक्स की बात हो, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे वो किसान कर्जा माफ़ी की बात हो, सही दाम नहीं मिलने की बात हो, हमने बस मेज़ पे रख दिया। कहा देखिए ये है। और हमारा एक्सपेक्टेशन था कि अब बीजेपी उसको चैलेंज करेगी कि देखो हमने 22 साल में ये किया और अब हम ये करने वाले हैं। मगर हमें आश्चर्य हुआ, वो चैलेंज हुआ ही नहीं। बीजेपी ने पहले नर्मदा जी की बात की, फिर ओबीसीज की बात की, फिर विकास की बात की, फिर ठंडे हो गए और उसके बाद डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, एक के बाद एक। मोदी जी के भाषण में आधा टाइम कांग्रेस पार्टी के बारे में, आधा टाइम उनके बारे में। ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के बारे में नहीं है, बीजेपी के बारे में नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के बारे में नहीं है, मेरे बारे में भी नहीं है। ये चुनाव गुजरात के अंदर जो फीलिंग है, गुजरात की क्रिएटिविटी है, उसका हम आने वाले 5 साल में किस प्रकार यूज़ करेंगे, गुजरात के लिए किस प्रकार यूज़ करेंगे और गुजरात का जो स्पिरिट है उसको हम कैसे आगे ले जाएं, ये मेन बात है। उस पर वो टिक ही नहीं पाए। ठीक नहीं भाई, बिल्कुल। लेकिन मैं मान रहा हूँ आप तो अभी मुखिया हो गए पार्टी के और जनता भी यही चाहती है। आप क्या मान रहे हैं, जनता की समस्या और इश्यू पे राजनीति होनी चाहिए या भावनात्मक मुद्दों पे? राजनीति दोनों पे होती है, इमोशन पे होती है, मुद्दे पे होती है, और इमोशंस और मुद्दे जुड़े होते हैं। प्यार से होनी चाहिए, यानी कि जनता की समस्या पहले होनी चाहिए। जनता की समस्या पहले होनी चाहिए। और अगर हम डिस्कस भी करें प्यार से, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी के बारे में बोला, अच्छा नहीं बोला, मणिशंकर जी ने बोला, अच्छा नहीं बोला, तो प्यार से होना चाहिए। इश्यूज रेज करनी चाहिए, ज़रूरी है, मगर क्रोध गुस्सा अच्छा नहीं लगता, राहुल जी शोभा नहीं देता। बिल्कुल। राहुल जी, आपने जिस तरह से आज गुजरात में, पूरे गुजरात में अपने बहनों को मिले, किसानों को मिले, आपने वायदे भी बहुत दिए, मतलब किसान का कर्ज माफ़ी। कभी किसान राह देख रहे हैं कि कब कांग्रेस की अगर बनती है तो कर्ज माफ़ी होगी। सेल्फ फाइनेंस, जो सबसे बड़ा इश्यू था हेल्थ और एजुकेशन का गुजरात में, वो आपने पकड़ा। ये अच्छी बात है कि आप मुद्दों पर गए, लेकिन आपने वादे भी बहुत कर लिए, तो ये वादे पूरे भी कर पाएंगे सर? पिछले 22 साल में मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। टाटा नैनो फैक्ट्री में 33,000 करोड़ रुपए, जितना पैसा कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा में डाला था पूरे देश में, एक फैक्ट्री में। आज उस फैक्ट्री में से 24 घंटे में 2 गाड़ियां निकलती हैं और टाटा कंपनी नैनो की प्रोडक्शन लाइन को बंद करने जा रही है। 33,000 करोड़ रुपए का क्या हुआ, क्या रिजल्ट मिला? पूरा का पूरा फोकस 10-15 लोगों की मदद करने में था। जो एम्फोसिस नरेंद्र मोदी जी ने, रूपानी जी ने 10 लोगों को दिया, वो एम्फोसिस हम गुजरात के किसानों को देंगे, सूरत के जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, मिडिल साइज बिजनेसमैन हैं, हम उनको देंगे। पब्लिक हेल्थ केयर, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को हम मजबूत बनाएंगे। सिंपल सी बात है, 90% कॉलेजेस आपने प्राइवेटाइज कर दिए। 10-15 लाख रुपए लगते हैं इंजीनियर बनने में, वही बात अस्पतालों में। तो फोकस बदलेगा और जितना इन्होंने 10-15 लोगों को सपोर्ट किया है वो हम फेयरली करेंगे, मतलब बैलेंस विकास होगा। और किसान कर्जा माफ तो हमने हिंदुस्तान में करके दिखाया है, वो तो हम करेंगे। तो ये प्रायोरिटी थोड़ी गलत हो गई है, इसको हम करेक्ट करेंगे। सर, हमें लगा गुजरात ने आपका भी कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा दिया है। जहाँ भी मैं गया गले लग रहे हैं, छोटी छोटी बातें, मैं पूरी जिंदगी ये नहीं बोलता, यानी कि आप गुजरात को नहीं बोल पाएंगे अभी? मैं मतलब छोड़ूंगा नहीं इसको। सर, आखिरी क्वेश्चन, आप अध्यक्ष बने हैं, अभी तो युवा हैं, युवाओं का देश है, आपका रोड मैप क्या है? राजनीति में जो नेगेटिव बातें, क्रोध, गुस्सा, गाली गलौज, अब्यूज़, पर्सनल अटैक हमारे ऊपर तो होते हैं, प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। मैं चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ना करे। एक लिमिट होगी जिसके आगे हम अलाउ नहीं करेंगे। मणिशंकर जी का आपने उदाहरण दिया, वो हमारी कोशिश होगी। दूसरी कोशिश होगी कि ये देश प्यार का, भाईचारे का देश है और ये देश में स्ट्रेंथ जब आती है
जब ये देश एक फील करता है। 22 साल नहीं हुआ काम, अब हम एक साथ खड़े होके, सब समाज एक साथ खड़ा हो रहा है, ये फीलिंग हिंदुस्तान में आनी चाहिए। मेड इन चाइना का मुकाबला होना चाहिए, और अगर हमने अपने देश के स्मॉल मीडियम बिजनेसेस की मदद की, हम चैलेंज कर सकते हैं प्यार से, गुस्से से नहीं, क्रोध से नहीं, हम प्यार से चैलेंज कर सकते हैं। फ़ोन पे, इस माइक पे मेड इन गुजरात, मेड इन इंडिया आ सकता है। बिल्कुल, खूब बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, बहुत अच्छा मीडिया लगा के साथ बात करने के लिए। तो दर्शक मित्रों, थैंक यू गुजरात। राहुल जी एक अच्छी राजनीति करना चाहते हैं, युवा अध्यक्ष बने हैं, और उसका जो एम है बिल्कुल सही है कि पर्सनल अटैक से ज़्यादा कोई समस्याओं पर अगर राजनीति हो तो इस देश में युवा यही चाहता है, और अगर ऐसी बनी रहे कांग्रेस में तो हम भी आशा रखेंगे कि ये अच्छी बात है। और गुजरात के लिए, गुजरात ने उन्हीं का दिल जीत लिया है, तो गुजरात को वो कभी नहीं भूल पाएंगे। इस तरह से वीटीवी में उन्होंने बात की। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, थैंक यू। जी नाजरीन, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। अपना बहुत सारा रखिए ख्याल, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।